Very good morning, everyone present, our participants, the audience, our esteemed panelists, also our representative from Tally, Mr. Balwant Singh. So today we will be discussing the Union Budget 2020, which was tabled by Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji few days back. And the base of this discussion is, so this is a dialogue and not a paper, presentation. It's a dialogue where we will be seeing very interesting views of our experts today about the budget. So thank you. I would like to thank MSME Business Forum India and Tally, the host for today, who have organized this amazing event, Pan-India event. So just to give you a brief about MSME and Tally, MSME Business Forum India is a networking hub of corporate executives, investors, experts who strive to, enhance the MSMEs in India. Those are medium, small, micro enterprises and help them increase their profitability. At MSME Business Forum, they provide expert solutions ranging from fundraising, valuations, IPO, funding, trade financing, structuring, all these kind of help, also around business help like human resource, training, legal advisory, branding, organizing events, JVs, tie-ups. So everything that a MSME would want to scale up their business, you name it, they have it. So they have this amazing panel of experts who have experience ranging from, with also 25 years of experience. So they have an amazing panel. So if you are that MSME looking for guidance, looking for mentorship, MSME Business Forum is the place for you. They help you do your business easily. Ease of doing business is what they strive for. So I'm also a proud member of this forum. Thank you. Tally, the backbone of our event, Tally. So Tally नाम तो सुना ही होगा, है ना? आप इंडिया में रहते हो, Tally नाम नहीं सुना है, पॉसिबल ही नहीं है. तो आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो और इवन इफ यू आर अ बिजनेसमैन, जिंदगी में एक बार तो टैली पे पक्का काम किया है, राइट? So I, being a chartered accountant, I started my career with Tally, right? A lot of our panelists also have. So what Xerox did with photocopy, Tally did with accountancy in India. Tally is equal to accountancy and accountancy is equal to Tally. India में ऐसा माना जाता है. So Tally Solution is headquartered in Bangalore. It's the pioneer in its business. 1986 में इसका inception हुआ था and it's been revolutionizing the way businesses run with over 2 million activated licenses worldwide. It caters to 7 million users across industries, 100 country के ऊपर. The company's latest product, Tally Prime, it is unmatched with great speed, great reliability and flexibility so that businesses can take confident decisions. 900 employees, 900 employees ke upar, Tally has offices all across India, Middle East, Africa, and also Southeast Asia. In lines with this purpose, Tally helps companies resolve their problems also through its class customer service centers, Tally Care. So Tally, thank you so much for hosting this, for being the game changer in the way businesses work. So if you can also see screen pay, the best your business can get, and yes, of course, Tally provides you with that. Now, coming to the topic of today, budget. तो बजट होता क्या है? अब आप लोग सब लोग जैसी बजट रिलीज होता है, अगर आप फैमिली के साथ डिनर पे हो या तो फिर फ्रेंड्स को मिल रहे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, you definitely have this at least one conversation कि बजट में क्या था, कैसा था, आप अपना ओपिनियन शेयर करते. अब ये ओपिनियन कैसे होते हैं? अरे टैक्स स्लैब में कुछ चेंज आया क्या? एटीसी में क्या डिडक्शन है नया? आम आदमी हमारे लिए क्या है भाई? किसानों के लिए कुछ किया कि नहीं गवर्नमेंट ने?
These are the conversations, right? But trust me, this is just the tip of the iceberg. Main deal तो भाई बेस में है. जो actual गेम चेंजिंग पॉलिसीज होता है वो सब आपके बेस में है, जो लोग टच भी नहीं करते. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. बजट फॉर अ कंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेट्स द पेस, इट सेट्स द मूड कि कंट्री किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाता है, जो भी चेंजेस लेके आता है, इवन इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, it is all around the industries, the sectors, the long-term vision that the government has. उसके बेसिस पे वो गवर्नमेंट चेंजेस लेके आता है या नया पॉलिसीज बनाता है. और दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है बजट का? न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, और वहां पे इतनी गहराई में शायद कवर नहीं होता, या तो हम उसको उस नजरिए से पढ़ते नहीं है. सो उसी को चेंज करने के लिए वी विल बी हैविंग दिस डायलॉग टुडे. Okay, and so each policy is formed, you know, there is a reason behind each policy being formed or each changes. हर एक policy अलग अलग भी है, पर एक beautifully connected भी है. And that's the whole picture that they make, a beautiful canvas that they create, the government creates, जो हमको realize भी नहीं होता है कि कैसे each policy कितनी important, कितने कितने मायने हैं उसके, और कैसे वो एक दूसरे से connected है. कल के स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाई थी, कुछ पंक्तियां सुनाई थी. मिथिला शरण गुप्ता जी ने लिखी थी. अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है. तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, हर पल है अनमोल. अरे भारत उठ, आंखें खोल. And this perfectly defines what we are going to do today. The Karma Kshetra, India, actually global. Let's not stick to India. Today, global is our, you know, we are all globally connected. So Karma Kshetra, globally, आप कैसे आप अपनी आप grow कर सकते हो, we will be seeing today. So, चलिए देखते हैं, नजरिए बदलते हैं अपने. एंड फॉर दिस होल पॉइंट, रवि नंदन सिन्हा जी, द डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट एट MSME बिजनेस इंडिया फोरम, he's taken a lot of efforts to create this beautiful panel of experts जो इंडिया के अलग अलग सिटीज से, अलग अलग शहर से, अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं. सब अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स है, डिफरेंट काम है, डिफरेंट ओपिनियंस है. कैसे ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं डाइवर्स इंडिया को, राइट? कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई ईस्ट से है, कोई वेस्ट से है. सो यू गेट अ होल, you know, combination of true India. उसके साथ even Gyanendra ji from Tally, he's made a lot of efforts to put all these experts together and, you know, bring this event up. So thank you both of them. Coming to the introduction of our esteemed panelists, Balwant Singh Chauhan ji from Tally. He is the DGM, Partner Business Group. Welcome, Balwant ji. North Zone for Tally Solutions. He has been associated with Tally for 15 years and he's got amazing experience of Tally as a product and related domain expertise. So he specializes in the knowledge of GST and all the Tally products. So if you ever wish to, you know, scale your business, know about Tally as your, and I'm guessing, I'm sure actually, not even guessing, most of the people present here have Tally with them. So आपको उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जानना है, उसको और कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, Tally प्रोडक्ट को, definitely Balwant ji is the person, he will guide you. So thank you Balwant ji for first organizing and then also being our expert today. Coming to Mr. Devesh Poddar. Started off as the youngest business partner for the biggest stockbroking company in India, that's Motilal Oswal, at the young age of 20.
Mr. Devesh Podar has gone to lead multiple hats as a founder, co-founder, CEO, independent director, board member. Oh my God, that's huge. Devesh, from stockbroking to advisory, waste management, alternative fuels like LPG, CNG, petroleum, he's done it all. He serves as an independent director and board member for BSE listed, a 75-year-old company, that's Martin Byrne Limited, that pioneers into infrastructure development. He's based in Nagpur. He serves as the founder and CEO of Intovex Ventures Private Limited and SDD Projects Private Limited. He's also the co-founder for Innovative Hydrocarbons India Private Limited, a CRISIL rated company into alternative fuels. They are also launching a LPG dispensing station by the brand name INN, that's In Gas. He's also the director for strategic development in International Institute of Influencers, registered with the Government of India, based in Oman. He is the international partner for World Business Angle Investment Forums, representing India at the Grand Assembly of WAF at Turkey. He is in the Steering Committee India chapter for Asia CEO community based in Hong Kong, containing all the impact makers across Asian region. He's also been selected as the winner for the Books for Peace 2022 International Awards based in Italy for contribution towards human rights, peace, culture, and community globally. He's also on board of a lot of startups as the advisor. So thank you so much, Devesh. That's an extremely impressive profile. Thank you for having me. Our pleasure. We come to CA Krishna Vadher, is a virtual CFO, business consultant, financial and tax expert, carrying a decade rich of experience serving more than 500 happy global multinational companies, working with Big Four accounting firm. She's on a mission towards the vision of our Honorable Prime Minister to make India a USD, the $5 trillion economy by 2025. She has helped a lot of companies to excel in the business maximization. She's also a passionate speaker, a trainer, author, blogger. She wears a lot of hats. And she also has a mission to help 10,000 females to be financially literate. That's an amazing mission to have. Thank you so much, Krishna. She's been awarded the Best People Leader Award. She believes her approach is different because she is hardcore optimistic. She coaches people to be positive and optimistic in every solution, in every situation, and also helps individuals to be financially literate and multiply their success. That's amazing, Krishna. Thank you so much for being here. Thank you so much for inviting me here. Thank you. Coming to our most experienced in our panel, Jyoti Prakash Sahuji is a senior executive, leader, pioneer, and strategist with over 25 years of experience across diverse industries, be it alcohol and food and beverage, FMCG, technology, everything. His career ranged from working from organizations from like HUL, Gati, Satyam, Gillette, PepsiCo, and now he's the co-founder of Sales Evangelist India. He's also working as a director in ANIA and BYLD Group. His expertise lies in being the curator for successful sales teams, brand activations, and also he works as an advisor and consultant to a lot of startups and SMEs. He's based in Bangalore. Krishna ji is based in Hyderabad. He has a special place for sustainable practice development with building technology around 100% biodegradable plastic. He's an alumni of SPJ in Management Institute and also pursuing his PhD. He considers himself as a lifelong learner and a spirituality maverick. Thank you so much, Jyoti ji, for being here. Thank you for the opportunity. Super. A bit about myself. Good morning, everyone. My name is CA Parinita Adukia, a fellow chartered accountant. So I'm based in Mumbai. Along with being a chartered accountant, I am a personal branding coach. I work with chartered accountants, MSMEs, and startups to help them scale their business. I help them represent their best self
working on their different concepts like communication, digital presence, and grooming. So they can, represent them in the best manner offline and online. And because entrepreneurship is game changer today, for being successful in your business, you have to be an amazing entrepreneur. That's what I live by. So thank you so much for being here, everyone. Great. So to give a quick brief to our audiences, the way we will proceed is, we have few, discussions, the points I have made, I'll be asking the panelists, okay? Along with that, if you as an audience have any questions for the experts, for us, please write it in the Q&A box that you can see in your screen. Please put your questions on the Q&A box. And while proceeding, I would like to have few opening statements, few of your opinions from each of the panelists. What do you think about the budget? So let's start with Devesh Podarji. Thank you, Parneeta. Firstly, I would like to thank Tally Solutions and Business Forum India for hosting such a dialogue with such a wide and diverse panel coming from across the country. I thank them all. And I myself, as you mentioned, I'm coming from a tier 2 city in Nagpur and have been fortunate enough to be associated with all kinds of entities that a business can think of, starting from sole proprietorship to partnership to MSME to a private limited and to a listed company. So all of my views are coming out of the experience and the exposure that I've got over the years in these fields. So coming to the budget, I would like to extend my deepest gratitude to the policymakers for providing us with such a non-traditional budget. The vision of India, the new India, needed it the most. मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये बात because हम एक जंक्शन पे है, इस स्टेज पे हैं जब पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से बाहर आ रही है, ठीक है? There are a lot of geopolitical tensions everywhere. There are a lot of countries that are going bankrupt. A lot more countries are hit by inflation. So the world at this stage is starved of growth. A growth की भूखी है at this stage, and India is providing just that. And with this budget, India has set a tone not just for this year, but for the next 25 years. अब इस बजट में सबसे खास बात यह है कि ये सबसे बड़ा कंटिन्यूएशन है of the fundamental policies and the vision of the new India. जो पिछले कुछ सालों में ग्रोथ रिलेटेड स्ट्रैटेजीज थी गवर्नमेंट की, उसे इस बजट में कंटिन्यू किया गया है, जिससे कि हमारे यूथ को इनेबल कर सके by providing skill development, by providing infrastructure, by providing the support related to finance, by related to skill, and set them on the ride for this wave of growth, on this train towards the new India. This budget has forced everybody to move the focus from freebies to self-worth and capacity building, Atmanirbharta, from short-term goals which are unsustainable and unstable to a long-term vision which is planned, stable, and more sustainable. The government, with all of its past initiatives, is already providing with houses, with food, with electricity, with water. With this current initiative like Gati Shakti and the mandate to the post offices to turn into core banking facilities, the government is trying to reach the last mile, the rural sector. And they want the youth and the people of India to divert their focus from basic living to forward thinking and a progressive thinking. And last but not the least, I would like to mention to all of our viewers that India for the last 1 year has been net creditor by all of this huge capex spend. India has still managed to be a net creditor. That means कि इस देश की फॉरेक्स रिजर्व इस देश की नेट लाइबिलिटी से ज्यादा है, जो कि एक इमर्जिंग मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है. So I applaud the policymakers and the leadership for providing us with such a non-traditional budget.
and definitely we'll be discussing a lot more things ahead. Wow, Thank thank you so much, Devesh. You really set the pace. एकदम बोलते ना क्रिस्प क्लियर आपने सब बता दिया कि क्या है बजट में और क्या हम देख सकते हैं. Moving forward, Balwant ji, may I have few of your opening statements about the budget? या पहले तो मैम सारे लोगों को मेरा नमस्कार. और एमएसएमई हमसे दिल से जुड़ा हुआ है और हम एमएसएमई के साथ दिल से जुड़े हुए हैं पिछले 34 सालों से. तो आप लोग हमारे फोरम पे आए हैं और अपने इस बजट टॉपिक के ऊपर जो बोल रहे हैं, पहले मैं टाली की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लर्निंग की वजह से हम आगे बढ़ते हैं और हमें भी बहुत सी नई सीख मिलती है. और हम वो कंपनी है जो सीखते हैं समय के साथ, नई चीज़ों के साथ, और उसको आगे लेके चलने का प्रयत्न करते हैं. तो मैं टाली में पिछले 15 साल से मैंने बिजनेसेस के साथ सीखा है कि बिजनेस कैसे होता है. और बीइंग एन एमबीए ग्रेजुएट only learned the things that business is all about aspiration. And whatever thing, whatever the challenge which comes all across is only the way ahead, which you people, the businesses, make it as a success. रास्ते में कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ दी हार्ड ब्लॉक्स, डेफिनेटली अगर देखें हम पिछले 2 साल से एक ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि हमारा पेंडेमिक सिचुएशन रहा है, कोविड, और अभी हम लोग ओमिक्रॉन से ऑलमोस्ट आई होप दैट नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अ वेरी गुड डायरेक्शन. तो हमने प्रयत्न किया है कि एज एन टाली जहां भी हमारे तरफ से आप लोगों को जो भी चीजें जरूरत हो एमएसएमई या हमसे जुड़े हुए सारे बिजनेसेस को, तो हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है. यस, ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो मेरे पर्सपेक्टिव में बीइंग एन इंडिविजुअल आई हैव अनदर फेस, एंड बीइंग एन बिजनेस डोमेन डेफिनेटली देयर आर टू अदर पर्सपेक्टिव. So one is, yes, not too good for the individuals, but yes, there are many positive vibes. If we will take that who is giving me what, कि भाई बजट का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को किसी ने लाके कुछ दे दिया और I started getting profit. तो बिजनेसेस को भी पता है it doesn't happen. So जनरली मैं बजट को अगर उस डायरेक्शन में या उस नजरिए में समझने की कोशिश करूं, तो बजट इज ऑलवेज देयर टू बैक मी ऑन सर्टेन थिंग्स, कि अगर मैं प्रयास करता हूं तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं. तो यस, डेफिनेटली इस बजट के अंदर भी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे देयर हैज बीन मींस ह्यूज डाइवर्सिफिकेशन. अगर हम पेमेंट की बात करें तो फिनटेक एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर काफी अच्छा बजट इस बार पेश किया गया है. और डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल इकोनॉमी की तरह हम मूव कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई एम रियली हैप्पी. मैं देखता हूँ छोटे छोटे माइक्रो बिजनेसेस स्टार्टेड यूजिंग दिस एज एन प्लेटफॉर्म. So I love that technology, and it helped, definitely helped several businesses. And there are many more positive things, like how we are taking at the investment into non-tangible assets like cryptocurrency and other things. So definitely there are lots of things, but yes, these are only possible to a growth extent when we all will unite and make sabka prayas. Because if we will not make an effort and think that budget will help, so definitely it is not going to help. We all need to unite in all situations to way forward. So I look this budget as an opportunity for the new startups, opportunity into more diversified growth into rural background. So definitely these has been taken care. So these are a few of the things which I take as a positive instant. With this, I'll thank you so much, and we'll definitely go ahead in further discussion. Yeah, over to you, ma'am. Super. Thank you so much, Balwant जी. आपने बहुत अच्छी बातें बोली, स्पेशली टैली के लिए. टैली डेफिनेटली हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ बिजनेसेस स्केल, एंड वही अपना हमारा बजट का भी बेस है. बिजनेसेस कैसे बढ़ाए, कैसे इंडिया को ग्रोथ की तरफ लेके जाए.
So thank you, Balwanji. We move to CA Krishna. थैंक यू परिणीता जी। पूरी इंडिया को कृष्णा के वादेर की तरफ से नमस्कार। और जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हम सब डिफरेंट लोकेशन से बैठे हैं, तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। और दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ कोविड। जबकि कोविड ने बहुत डिजास्टर भी किया हमारे लाइफ में, बट एक पॉजिटिव थिंग ये है कि उसने हमें वर्चुअली कनेक्ट किया, सो दैट ज्योग्राफिकली बैरियर हमारे बीच नहीं आए। तो सिमिलरली गोइंग ऑन दोज लाइन्स, ऑन बजट, ये जो बजट है, जो बजट यूनियन बजट 2022 का है, वो एक टैक्स बजट नहीं है। सो मेरे हिसाब से हाउ आई टेक इट, इट इज अ इन्वेस्टमेंट बजट एंड अ ग्रोथ बजट। हम इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं। मेरे बहुत सारे कलीग्स ने, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे हैं जो मेरे पास आए, आपको क्या लगता है बजट में कुछ है ही नहीं हमारे लिए। बट मैंने उनको ये बताया कि आप क्या देख रहे हो कि हाँ, ATC का डिडक्शन जो 1.5 लाख का है, अगर 50,000 बढ़ा दिया जाता, अगर उसको 2 लाख कर दिया जाता, और अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में भी हैं, तो आप कितना टैक्स बचा पाते? 15,000 साल का 15,000 आप बचाते टैक्स, अगर टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाता, मतलब वो डिडक्शन बढ़ा दिया जाता। बट यहाँ पे फोकस किस चीज पे किया गया है? इस बजट पे फोकस किया गया है इंडिया के ग्रोथ पे। इंडिया की ग्रोथ कब होगी? जब इंडिया के कंपनीज की ग्रोथ होगी। और इंडिया के कंपनीज की ग्रोथ अगर होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसकी टीम है और इन्वेस्टर्स है, उनकी ग्रोथ होगी। अगर 1% भी इंडिया के कंपनीज में ग्रोथ आता है, वो 1% किसको मिलता है? जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, या उस कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं, या उस कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। तो 1%, अगर आप उसको ब्रॉडर पिक्चर से देखेंगे, वो 15,000 से कहीं ज्यादा आपको ग्रोथ आपके पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे मिलेगा। तो ये जैसे परिणीता जी ने बोला, ट्रेडिशनल अप्रोच से हटके इस बार उन्होंने किया है, ताकि हम ग्लोबली compete करें। ग्लोबल वर्ल्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हम स्टिल इंडिविजुअल लेवल पे सोच रहे हैं। हमें होलिस्टिकली सोचना है विथ कंट्री पर्सपेक्टिव, कि मेरी कंपनी, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, आपकी कंपनी GDP की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और ये बजट हमें वो ऑप्शन दे रहा है उस थॉट प्रोसेस में सोचने के लिए। इसीलिए जो टॉप फोकस है बजट का, वो ये है: PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशंस, क्लाइमेट एक्शन, फिनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ हमारे फ्यूचर जनरेशन की ग्रोथ का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने देखा कि कोविड की वजह से लास्ट 2 साल में हमारे बच्चों का बहुत लॉस हुआ है, उनकी एजुकेशन पे बहुत लॉस हुआ है। भले ही वो वर्चुअली कनेक्टेड थे, बट उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई। बहुत सारे बच्चे रूरल एरियाज में ऐसे थे जो वर्चुअली क्लासेस भी नहीं कर पाए थे। एंड उसकी वजह से 1 क्लास 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM ई-विद्या लॉन्च किया गया है, जो 12 चैनल से एक्सपैंड होके 2000 TV चैनल्स पे चलेगा, टू गिव अ बूम टू ऑल द सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज फॉर क्लास 1 to 12। मतलब ये जो रीजनल लैंग्वेज है, बहुत बार ऐसे होता है कि TV चैनल पे पढ़ाई किया जा रहा है, बट इंग्लिश में हो रहा है या हिंदी में हो रहा है, तो जो बच्चों को वो लैंग्वेजेस नहीं आती, उनको बहुत लॉस हो रहा था। तो उस माइंडसेट को, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये बजट में इस PM ई-विद्या को लॉन्च किया गया है, टू एक्सपैंड, ताकि मोर एंड मोर फ्यूचर डेवलपमेंट हमारे बच्चों का हो सके। एंड 5 एग्जिस्टिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस फॉर अर्बन प्लानिंग for designated as Central of Excellence with endowment fund of 250 crores has been prescribed. So इस बजट में उन लोगों ने इंडिया का ग्रोथ, फ्यूचर जनरेशन का ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट, हर चीज को उन लोगों ने टच किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट पूरी इंडिया से यही है कि हम इंडिविजुअल लेवल से हट के होलिस्टिक, अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखें, आप जरूर देखेंगे कि आपका भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है इंडिया के साथ साथ, और हम एक नई इंडिया की तरफ
प्रस्थान करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू परिणीता। वाओ कृष्णा जी, कितने परफेक्ट वर्ड्स यूज किया है। हमारा बजट इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, इट्स अ होलिस्टिक नेशनलिस्ट बजट मेड फॉर एवरीबडी। सो जो बोलते हैं ना कि बचाना अच्छी बात है, पर अब कमाना भी सीखो, ग्रो करना सीखो। सो दैट्स व्हाट द बजट, द होल एस्पेक्ट और दी बोलते हैं ना सोल ऑफ द बजट इज grow and grow. So thank you Krishna ji, and we move to Jyoti ji. Please, if you can share your opening statements and your expertise in this. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. I think I will first start by thanking MSME Business Forum, Tally, and especially Pranita ji for your kind words. बहुत बहुत धन्यवाद. I think पहला चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि जिस माहौल से हम लोग आए हैं कोविड का, और जिस माहौल में ये बजट पेश किया गया, ये मुश्किल है. मतलब ये एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि काफी कुछ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट रहा है इकोनॉमी पे. एंड ऐसा नहीं कि ये जो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है ये खत्म हो चुका है, ये अभी भी चालू है. बशर्ते कि थर्ड वेव इतना बुरा नहीं रहा है फर्स्ट टू वेव से, लेकिन स्लो डाउन द इकोनॉमी तो हम लोग ने देखा है. स्लो डाउन द इकोनॉमी देखा है ड्यू टू स्लो डाउन इन डिमांड, एंड बहुत सारे सेक्टर्स काफी बैडली हिट हुए हैं. स्पेशली मैं एक पॉइंट आउट कर लूंगा, जितने भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं ये काफी बुरी तरह से इंपैक्ट हुए हैं. एंड उस माहौल में ये बजट पेश किया गया है. आई थिंक ये लक्ष्य बड़ा क्लियर था, ये पॉइंट बड़ा क्लियर था कि ये बजट क्या होना चाहिए. ये होना चाहिए था कि इकोनॉमी को कैसे हम लोग रिकवरी ट्रैक पे वापस लेकर आए. हाउ डू वी गेट द इकोनॉमी बैक ऑन अ फर्म रिकवरी ट्रैक. दिस वाज द क्लियर मैंडेट फॉर द बजट. एंड यूजुअली होता क्या है कि आप बजट में देखेंगे बहुत सारे कंपीटिंग डिमांड्स होते हैं, ये डिमांड वो डिमांड, एंड बहुत कुछ टाइम और तगादा होता है, कुछ अलग चीज का होता है. तो लेकिन यहां पे जो बजट है इस बार ग्रोथ का मैंडेट चुना गया है. एंड जो ग्रोथ का मैंडेट चुना गया है इसका मतलब है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. ये तो बोलना ठीक रहेगा कि ये बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव बजट रहा है, बट क्या रीजन के लिए प्रोग्रेसिव रहा है उसका मैं कारण और उदाहरण बताना चाहूंगा. इट इज नॉट प्रोग्रेसिव फॉर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिजिटल करेंसी, डिजिटल university which has been instituted, or the usage of drones and agri technology. It is not, yes it is pointing towards progressiveness, but the main reason why it is progressive is जो theme है, ये बड़ा switch है from welfare spending to investment mode. सबसे most important progressiveness का वादा रहा है in terms of rise in capital expenditure. A rise in capital expenditure outflow जो 7.5 लाख करोड़ का किया गया है, ये समझना जरूरी है कि ये 82% over last 2 years है, 35% over last year है. इसका क्या मतलब है और क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा ये हम समझेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मेरे लिए ये प्रोग्रेसिव क्यों है. पहला चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले 7.5 करोड़ lakhs is absolutely stupendous. सेकेंड, गति शक्ति मास्टर प्लान. आई थिंक ये समय का तकादा था कि ये हम लोग कोऑर्डिनेट करें, एंड इन साइलोस नहीं, एकजुट होके जितने भी हम लोगों का लॉजिस्टिक्स को कॉस्ट को कम करने का प्रयास है, ये एकजुट होकर करने का समय आ गया. आई थिंक ये मैंडेट भी दिया गया है गति शक्ति मास्टर प्लान. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस जो कि काफी फैले हुए हैं, पूरा देश भर में है अलग अलग जगह, और उनका रीच काफी अच्छा है. वो अभी मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गया है. इसका काफी कुछ इंपैक्ट रहेगा, वो भी हम लोग समझेंगे आगे जाके. आई थिंक
द मेन मोटो एंड द मेन हम लोगों का जो मुद्दा रहा है ये बजट का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग का रहा है, जो कि बेसिकली एक कंपाउंडिंग साइकिल को बढ़ावा देता है, जिसमें हम लोगों का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल भी बढ़ेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, एंड साथ साथ हम लोगों का जॉब क्रिएशन भी होगा. तो ये आई थिंक इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, स्पेशली फ्रॉम द बैकग्राउंड विच वी हैव कम. आई थिंक द मेन मोटो एंड द मेन मुद्दा रहा है कि ease of doing business, but the ease of doing business is directly linked to cost of doing business. We have to understand that. And to give you a small udaharan, like for example, look at, imagine you are a moving car. आप एक गाड़ी चला रहे हैं और जो माहौल से आए हैं काफी मतलब धुआं था, धुंध था, फॉग क्लियर हो गया है. आपके पास जीपीएस बता रहा है कि आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना, ये लक्ष्य है आपका. तो ये लक्ष्य के साथ ही वह गाड़ी को आप स्पीड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. तो एक तो ऑप्शन है कि आप टायर बदल लें कि वो स्पीड तक पहुंच सके, लेकिन टायर बदलने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली what you should be doing is to ensuring that the engine is boosted for higher speeds. I think that is the main motto of this budget. The engine has been boosted and the navigation is very, very clear that we have to reach a $5 trillion economy. I think that's the beauty of this entire budget. I think vehemently and astoundingly has been a very progressive budget. Thank you. Wow. So the way you have put it बताता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना डीप है. आप इकोनॉमी, आप इंडस्ट्रीज, आप बिजनेसेस को कितने अच्छे से समझते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म देखते हैं. सो परफेक्टली पुट ज्योति जी. इट इज ऑल अबाउट ग्रोथ, इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी बढ़ाना है, कैपेक्स, द वर्ड दैट यू यूज्ड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, जो आप अपने बिजनेसेस में लगाते हो, जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो कैपिटल एक्सपेंस है, जो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाते हो, दैट इज कैपेक्स. तो कैपेक्स का इन्फ्यूजन अपने इकोनॉमी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, परफेक्टली आपने बहुत अच्छे से बोला. उसी को आगे बढ़ाते हुए ज्योति जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने कनेक्टिविटी और कैपेक्स की बात की है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटली है, जो भी कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट बढ़ाना चाहता है, बजट में क्या है जो स्पेशली आपकी गाड़ी जो आप अपना भगाना चाहते हो, वो गाड़ी रूरल आउटपुट तक कैसे पहुंचेगी थ्रू ऑल दिस कनेक्टिविटी एंड कैपेक्स? आई विल रूरल आउटपुट के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट आई जस्ट सेड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द बजट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि the cost of doing business, as I said, is directly linked to the ease of doing business. Perfect. Right? And the cost of doing business है, अभी थोड़ा ये जो माहौल चल रहा था, commodity prices increase हो रहे हैं, input cost बढ़ रहे हैं, ये prompt price increase किया है, जिसके वजह से हम लोग का डिमांड कम हुआ है. और इन दोनों को दूर करने के लिए, इसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम लोग का डिमांड और बढ़े, हम लोग को दो चीज करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स. ये दोनों हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और भी बेहतर हो, हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े. तो पहला चीज, जो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने किया है, कैपेक्स आउटले किया है, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, स्पेशली रूरल में, और स्पेशली रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जो कि हम लोगों को मदद करेगा. पहला, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, राइट, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो ग्रोथ सस्टेन किया जाए उसके लिए. और तीसरा चीज है कि हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो, जिसके वजह से हम लोगों को और भी नया इन्वेस्टमेंट, आइदर इन न्यू फैक्ट्रीज और इन अदर वेज, विच विल क्रिएट डिमांड, विच विल क्रिएट हम लोगों का employment. So this is the overall background, but coming back to the rural output, I think the answer lies in the 7 engines of Gati Shakti National Master Plan. I mean, if you look at the 7 engines, roads, railways, airports,
ports, mass transport, waterways, logistics, ये पहली बार ये किया गया है कि एक तो फोकस रहा है कि गति शक्ति मास्टर प्लान को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई एक प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको रेलवेज बढ़ाया गया या एयरपोर्ट्स नया तैनात किया गया है, तो ये हर एक चीज दूसरे को सपोर्ट करता है। मतलब आपका ये नेटवर्क अगर बनता है तो नेटवर्क खाली इन साइलोस नहीं बनता है, उसके साथ साथ आपका एक पोर्ट बना तो उसका रेलवेज भी उसका साथ जुड़ता है, उसके साथ आपका रोडवे भी जुड़ता है। तो what is it trying to do? It is trying to get the logistics cost down, making whatever you have in terms of rural output, it is getting the reach to the best possible places so that you are not handicapped with logistics and the cost of logistics. So that is one. आप गति शक्ति प्लान में और एक चीज देखेंगे कि ये तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो बढ़ाता ही है, जो कि हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कराता है। एक चीज इसमें खास बात है कि एक ULIP करके एक चीज हम लोग का तैनात किया गया, जिसका मतलब है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक जो प्लेटफॉर्म है, ये सब गति शक्ति के 7 इंजिन्स को लेके चलता है, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग का ये TDS डॉक्यूमेंटेशन दूर होगा, डिजिटलाइज होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। ये दोनों चीज करने के बाद हम लोगों का लॉजिस्टिक्स और समय काफी बचता है, जो कि हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, ओवरऑल हम लोगों का आउटपुट बढ़ाता है। तीसरा चीज है most importantly, which is directly linking to the rural output, is the 1.5 lakh post offices which are now becoming as good as a banking outlet. Now you have to understand the landscape. 90% पोस्ट ऑफिस रूरल इंडिया में है। मेन स्ट्रीम बैंक्स आज के दिन में इनका जो सेविंग्स है, जो कि 15 लाख करोड़ हो, उसको हम लोग मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम अभी टैप कर सकता है। नाउ पोस्ट ऑफिस के जितने अकाउंट है ये इंटर ऑपरेबल होने लगे हैं विद द बैंक्स। इसके बेनिफिट ग्रुप कौन है? इसका बेनिफिट ग्रुप वेरी क्लियरली फार्मर्स, laborers, we have senior citizens, and because I told you 90% of the post offices are in rural India, and with the penetration of smartphones is going to be a force multiplier. So what will happen? There will be a lot of new banking models which all rural India will have access to. The cost of lending will go down, service standard improve होंगे, geographic reach बढ़ेगा, and ultimately cost of doing business will come down. So there will be a lot of rural businesses को बहुत push मिल रहा है. Absolutely, there are a lot of specific, very specialized SME lenders, and उनको ये access मिल रहा है, ये financial inclusion के साथ साथ. So आप अगर पूछेंगे कितने savings accounts है, there are 19 crore savings accounts which are available in post offices. So आज के दिन में ये भी बताया गया है कि we have an objective of fiber connectivity by 2025 to each and every village. स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन हो रहा है, बैंकिंग तो ऑलरेडी आ चुका है, गति शक्ति का जो मास्टर प्लान वो बन चुका है. So what is it trying to do? It is basically trying to say that the digital economy is now affecting and impacting the bottom of the pyramid in a very good manner. And that is where the rural output will increase. Superb. Rural, लोग हमेशा ये सोचते कि अरे फार्मर्स के लिए डायरेक्टली कुछ किया नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ राहत नहीं है, कैसे चलेगा, क्या होगा, अच्छा नहीं है. लेकिन जो बेस है, लाइक ज्योति जी सेड, जो बेस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप जैसे ग्रो नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं डालोगे, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाओगे, तो उन लोग अगर प्रोड्यूस भी कर ले तो मार्केट में आएगा कैसे? मार्केट में सही कॉस्ट पे लाना, सही प्राइस पे लाना, ताकि वो ज्यादा कमा सके, वो ज्यादा जरूरी है. प्रोडक्शन ऑफ कोर्स जरूरी है, बट उनको सही लोगों तक सही टाइम पे पहुंचाना और भी ज्यादा जरूरी है. Absolutely. Yeah, that is what you covered brilliantly कि कैसे गति शक्ति is so important, post office is so important. इतनी सारे initiatives, so many things happening, still people say there's nothing.
Devesh, what is your view on this? तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल बजट, और नॉन ट्रेडिशनल का मेरा मतलब था कि इस देश की जनता, जो आम जनता है, वो बजट को जब भी देखती है तब दो चीजों से जोड़ती है, ठीक है? उसका डायरेक्ट टैक्स स्लैब और उसके बेनिफिट उनको कैसे पड़ रहा है उनकी इनकम पर, और दूसरा है कि नॉन डायरेक्ट टैक्सेस की गुड्स और सर्विसेज पे क्या छूट मिली। Correct. इस सरकार ने इन दोनों भी पॉइंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और टेम्पररी मेजर्स होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस ना देते हुए उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव्स पर ध्यान दिया है, जैसे कि ज्योति जी ने अभी डिस्कस किया, जो कि एक हाउस होल्ड और एक 4 लोगों के घर में या 6 लोगों के घर में लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड करे और लंबे समय तक वैल्यू ऐड करे, उस पर फोकस किया है। अब हमने गति शक्ति के बारे में बात किया, हमने ये भी बात किया कि कैसे लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी होगी, कैसे पोस्ट ऑफिसेस को कोर बैंकिंग फैसिलिटीज पे लाने का मैंडेट लाया गया है। तो हम पहुंच तो सब जगह जा रहे हैं, इससे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लैक थी, जो कमी थी, वो ये सारे इनिशिएटिव से पूरी हो रही है। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी रहेगा कि हमारा देश एक यंग देश है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज बिटवीन 18 to 60 years of old, ठीक है? अब इस देश में इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इतनी सारी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, मगर क्या हमारा यूथ, क्या हमारे लोग एम्प्लॉयबल है? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने हमारा जो स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसमें काफी सारे चेंजेस की इनपुट दी है इस बजट में, जो कि विल बी एट पार विद द इंडस्ट्रियल डिमांड। आज इंडस्ट्री की डिमांड चेंज हो रही है, पीपल आर गोइंग डिजिटल, इंडस्ट्रीज आर गोइंग डिजिटल, लोकल कंपनीज एंड लोकल बिजनेसेस आर गोइंग ग्लोबल। जो कंपनीज सिर्फ लोकली सर्विस करती थी, आज वो ग्लोबली सर्विस कर रही है। तो आज उनके एम्प्लॉयज के लिए वैसा रीच होना, वैसा स्किल होना बहुत जरूरी है। तो इस फ्रेमवर्क में उन लोगों ने देश टैग पोर्टल एक बनाया है, जिसमें इस तरह के एक्सेस होंगे, जिससे कि हर एक आदमी अपने इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से खुद को स्किल कर सके और वो प्रोवाइड करा सके जो इंडस्ट्री चाहती है। उस पोर्टल पे all the people will be able to access the new job opportunities, all the new entrepreneurial opportunities. So government ने नहीं, ना सिर्फ आपके एक साल के इनकम पर क्या टैक्स बचना चाहिए, जैसे कि कृष्णा जी ने बोला कि 15,000 बचे या 50,000 रुपए बचे, इस पे फोकस नहीं किया है। आप कैसे 5 लाख रुपए कमा सको, कैसे 10 लाख रुपए कमा सको या उससे भी ज्यादा, उस पर फोकस किया है। So yeah, so this is it for this Wow. question. So your whole the summary is, you believe, and even we believe, the budget today, the presented budget, is progressive and forward thinking, right? So firstly, मैंने काफी सुना है ये कि सबसे मैं सुन रहा हूँ progressive and forward thinking, but for we to understand this, we need to first understand this subject matter जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब क्या है? तो प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड थिंकिंग का मतलब है थिंकिंग एंड प्लानिंग by taking the future into perspective, by taking the future into account. So what has this budget given for us with regards to the future? As we discussed infrastructure, as we discussed skill, but what else is the future demanding from us, from the government, from the nation? Right. तो 3 चीजें मैंने हाईलाइट की है जो फ्यूचर हमसे डिमांड कर रहा है। फर्स्ट है गो ग्रीन, जो भी डेवलपमेंट हो ग्रीन डेवलपमेंट हो, बराबर। जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि हम अनथिंकेबल तरीके से बस स्पेंड करते जाए और इंफ्रा पे स्पेंड करे, ग्रो करे, लेकिन वो सस्टेनेबल ना हो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो गो ग्रीन फर्स्ट, go sustainable second,
and third is go digital. In spite of everything that has been spoken over the years, India has considered to be an orthodox nation in terms of adapting technology and going digital. But this budget has provided for all these 3 points. Like I'll just highlight, our Prime Minister had committed in the climate change initiative at Glasgow, UK, United Kingdom, in 2018 or 19, that India will be net neutral in terms of carbon emission by 2070. And he has also committed that he has committed that he'll reduce 1 billion tons of carbon produced by 2030. And the majority, like 3,000 crores, have been provided for faster adoption of electric vehicles. Oh, nice. For such an initiative. There are a lot of initiatives that will promote green revolution and green development, but I'm just highlighting the few points that people can understand and connect to. So electric vehicles have been a big subject that people are very excited about. There are a lot of electric vehicles coming out. Right. So government is eager to move away from fuels, from petrol, from diesel. Like our transport minister has already told us that they'll be moving away from petrol and diesel very fast. And for that, they need to build an infrastructure that will promote green energies. So this is one of them. Second point of going sustainable, renewable energy is one of the core subjects that will enable the country to go sustainable. For this, the budget has allocated more than 7,000 crores. He has, the finance minister has also given a huge weightage for solar energy. Out of the 7,000 crores, 3,000 crores is just for the promotion of solar energy. Apart from this, there are PLI schemes under a lot of ministries that will promote sustainability. One of which is just allocating 19,000 crores for the building of solar modules, the manufacturing of solar panels, which is a huge allocation. And we will be seeing in the times to come that we will be moving towards alternative fuel. We will be moving towards the alternative energy, renewable energies. So this is one of the things that will benefit the country for years and years to come. This is not a budget for 2022. This is a budget for 2047, when India will achieve 100 years of independence. Today, we are standing in the year 2022, which is the 75th year of independence. So this is going to be huge. The third point is going digital. Like I said, India has considered to be the most orthodox nation when it comes to adapting technology, to going digital. Cryptocurrencies and digital assets have been a boon, a bane for most of the people, and for the RBI, for the government itself. There has been a lot of talk that we won't be adopting it, but we are the first few countries in the whole world that has taken a step towards taxing the digital assets. Correct. What does this mean? That they are open to adapting digital India, to transform digitally. Perfect. And for this, they have started taxing digital assets. More on this, the taxation front will be told by Mrs. Krishna ji. So over to you. There has been a lot of, jab crypto ka sab, I think September, October, when a government said ki, they were planning what to do about this crypto, there a sudden raise of investment in crypto, so many people using different mobile applications, in investing in crypto, earning money secondary, but still there was a lot of investment shift from shares to the crypto. And when the government made announcement that they need to take some steps, there was a lot of unrest. And that unrest was taken into consideration and, pointed out in the budget, or finance minister ne bola ki, digital assets, including the cryptocurrencies, will be taxed, right? And that to the highest slab.
So, Krishna ji, what are the tax implications and how will it affect the whole market, all the digital currencies and the digital assets? Surely, I'll touch base on that. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डिजिटल करेंसी है क्या, व्हाट इज दिस क्रिप्टो करेंसी, मतलब पहले हमें वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो एक वर्चुअल या डिजिटल मनी है जो विच इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ टोकन और कॉइन्स, राइट। आज हम फिजिकल फॉर्म में जो यूज करते हैं ये उसका डिजिटल फॉर्म है। समवट सिमिलर टू, आज आपके बैंक अकाउंट में पैसा है या आपके वॉलेट में पैसा है, तो जो वॉलेट में आपके पास है वो है आपका फिजिकल करेंसी, और जो बैंक अकाउंट में है दैट इज वर्चुअल मनी हम बोल सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी समवट सिमिलर टू दैट है। एंड मैं इसके ऊपर ये बताऊंगी कि इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है, बट व्हाई इज द टैक्स इम्प्लीकेशन और वो रेट क्यों लगाया गया है उसका भी कोई लॉजिक है बिहाइंड। और लॉजिक क्या है कि seeing crypto so much booming in last 2 years, especially last 2 years, जैसे ही पैंडेमिक आया तो लोगों के बिजनेस यहाँ बंद हो रहे हैं, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, बट वहां हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट बूम हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इट्स अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट्स, इट्स अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट जो मार्केट में प्ले हुआ और जिसके वजह से कि क्रिप्टो को बूम मिला। लोगों को ये लगा कि बिजनेस डाउन हो रहा है, जॉब्स जा रहे हैं, तो ये एक इजी मनी है जहां पे आज मैं 100 रुपए लगाऊं तो हफ्ते भर में मेरा 1000 होने का चांसेस है, श्योरिटी नहीं है। तो लोगों ने वहां पे एक एज ए लॉटरी गेम प्ले करना चालू कर दिया। तो जैसे ही धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ नहीं मेरा पैसा बढ़ रहा है, मुझे इसमें लगाना चाहिए, दे स्टार्टेड पुटिंग देयर मनी, राइट। बट क्या हमने ये सोचा कि अगर वो आप 100 रुपए जो आपने लगाया वो अगर जीरो हो जाए तो आप किसके पास जाओगे रेमेडी के लिए? आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन इन द चैट आल्सो राइट नाउ। रेमेडी के लिए आप किसके पास जाओगे? आज हमें पता है कि आप शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में आप पैसा लगाओ तो अगर कुछ गड़बड़ होता है यू हैव अ रेगुलेटर, आपके पास सेबी है, सेबी इज देयर टू प्रोटेक्ट द मनी ऑफ इन्वेस्टर अगर आप सही से करो। बट यहाँ पे क्रिप्टो के लिए अगर आप पैसा लगाते हो, डू यू हैव एनीबडी टू गिव यू द बैकअप? तो ये एक सीरियस कंसर्न था आरबीआई के पास। लोग ज्यादा पैसा दूसरी जगह से निकाल के क्रिप्टो में डाल रहे थे एंड अभी तक उसको एक लीगल टेंडर स्टेटस नहीं मिला है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया ऑल्सो, हमें वो क्रिप्टो का भी लीगल टेंडर नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ विच हमने क्या देखा दैट 15 मिलियन टू 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इन इंडिया, मतलब टोटल पॉपुलेशन से देयर आर 15 टू 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं एंड 40,000 करोड़ से ज्यादा रुपया वो क्रिप्टो में लगा के रखे हैं। तो आप यू इमेजिन फ्रॉम अ कंट्री पर्सपेक्टिव, अगर कल को कॉइन सारे डिमोलिश हो जाए, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं सारी की सारी अचानक से वेव ऑफ हो जाए, so we lose on that 40,000 crore money, right, and we don't have any legal action to take against it, correct. So it's kind of a lottery game, and to minimize, to discourage the investment in cryptocurrency because it is not yet legalized, we don't have a legal tender, government ने एक tax slab डाला है for people जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। This will be little disheartening, but I would request them to understand the logic behind putting this tax rate, right. आप ऐसे जगह पैसा लगाइए जहां पे आपको थोड़ी तो श्योरिटी हो, बट जहां पे बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, आप लगा रहे हो, आपको मुनाफा एज अ लॉटरी हो रहा है ये, बट उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, सो इट इज योर हार्ड अर्न मनी। तो आप प्लीज थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा लगाएं। प्रॉब्लम ये है 90% लोगों को पता ही नहीं कि क्रिप्टो होता क्या है। बस वो पैसा मेरा बढ़ रहा है, बस वही है। जब वो नीचे जाएगा, या आई हैव सीन पीपल, मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कुछ कॉइन्स में पैसे लगाए एंड 1 वीक बाद उनको वो कॉइन ही नहीं दिख रहा है, सो देयर मनी इज गॉन। वो किसके पास जाए? सो टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टोकरेंसी, गवर्नमेंट हैव ब्रॉट इन दिस टैक्स रेट्स ऑफ 30% on the gain,
मतलब अगर एक क्रिप्टो करेंसी एक बंदे से ट्रांसफर होकर दूसरे बंदे पे जाता है और उसको जो मुनाफा होता है उस मुनाफे पे उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा एंड उसको किसी भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा उस बंदे को, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लीजिए जो आपका 100 रुपए में आपने खरीदा था और आज के डेट में 1000 हो गया और आपने बेच दिया, तो 900 के ऊपर 1000 माइनस 100, 900 के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज ये है कि अगर आपको लॉस हो जाता है, जैसे 100 का अगर 50 हो जाता है, तो आप वो लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज, अगर किसी को गिफ्ट करते हो क्रिप्टो करेंसी, तो जो रिसीवर होता है जिसको वो क्रिप्टो मिला है उसके हाथ में वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 30%। परफेक्ट, वाओ, इतना सिंप्लीफाई कर दिया ना कृष्णा जी, बिकॉज इतने क्वेश्चंस है अराउंड क्रिप्टो, लोगों को पता नहीं कि डिजिटल एसेट होता क्या है, क्यों 30% डाला है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अरे 30% डाल दिया सीधा हाईएस्ट टैक्स रेट, ऐसे क्यों 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 इज बिकॉज जो बेस है, हम जो लाइक ज्योति जी सेड, यस इंडिया इज अ बिट ऑर्थोडॉक्स बट इट इज फॉर द लॉन्गर विजन, राइट, रेगुलराइज थिंग्स, इसीलिए 30% डाला है। डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म मनी, डोंट गो फॉर इजी मनी, go for hard earned good stable money income. That's what the government is also focusing on. And of course tax आया है तो उसका accounting भी होगा, there has to be this thing. So बलवंत जी, टैली हमेशा एक स्टेप आगे रहा है, जो भी पॉलिसीज आता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, अपने सॉफ्टवेयर में, बिजनेसेस को हेल्प करने में। सो when it comes to the virtual money, the digital assets, उसके अकाउंटिंग के लिए टैली क्या कर रहा है? सो डेफिनेटली जस्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये बहुत ही नया पर्सपेक्टिव है अकाउंटिंग टर्म्स में, और इसके लीगल पॉलिसीज और इम्प्लीकेशंस में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स आएंगे जो कि हम लोग रेगुलराइज होके डेफिनेटली बिजनेस जो हमारे कंसल्टेंट होंगे और उनसे हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे, और जो पॉलिसी और गाइडलाइंस इसकी जो पब्लिश होगी उसके हिसाब से अकाउंटिंग टर्म्स में इसको हम एसेट्स में किस पार्ट्स में लेके चलेंगे और किस तरीके से इसको हम लोग जाके अकाउंट फॉर करेंगे, it need to be still get more clarity. So whenever the clarity will come, I assure that yes, as in technology terms, there have been foundational development into the product. That foundational development means अगर आप लोग समझ पाए होंगे क्योंकि आप लोग टैली चला रहे होंगे, तो फाउंडेशनल डेवलपमेंट ये है कि अगर मैं एज एन इंडिविजुअल अपने चीज़ों को अगर मेंटेन करना चाहता हूँ एज एन अकाउंटिंग टर्म्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को उससे डेवलप करना चाहता हूँ, तो यस, द फाउंडेशनल डेवलपमेंट इज ऑलरेडी देयर इनटू द प्रोडक्ट। तो कोई भी क्रेडिट या डेबिट्स है या उससे रिलेटेड जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आज भी हम कर सकते हैं। तो इस मोर ओवर अगर हम बात करें इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं, अगर उसको अपने हिसाब से देखें तो यस, द प्रोविजन ऑफ अदर इनकम्स के अंदर जब हम इसको लेके जाएंगे तो डेफिनेटली दैट पार्ट कैन बी टेकन केयर। एंड रेलेवेंट अगर हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट पे अगर हम देखते हैं एज एन बिजनेस, so definitely there are two more important things, that if we are making such transaction during our core of regular business, so in accounting terms, yes, there will be two taxes. One would be the tax which is getting there at 30%, which has been set there, and there is a provision of TDS also, that development need to be definitely set there. But yes, the basic foundation of accounting system has already been laid into the product that can be managed every time and any time into this. Apart from this, yes, there are certain because we are talking more about the budget, but yes, I would like to highlight a few of the things which is going in advance into the technology. Like people are means the MSME, the forum has also been with us for highlighting few things. Like there are certain businesses which are going into purview of the tax audit trail.
So the MCA notified companies are going to have the requirement of this technology. So from our end, yes, we are ready with that technology, and very soon the MSME will be means given the solution. Whoever comes under the MCA regulation would be able to use this technology in all the circumstances, because this is not only that a single person have only one business, but yes, might be a single person have multiple business. So who if I want to apply the MCA regulation with one company, I don't want to apply with the other company. Like you means the consultants like chartered and accountant, the associations, whoever just suggesting the growth part would be able to make that difference during these projects. And apart from this, the behavior of getting the digital signed documents has been increased into this current phase. Means during the pandemic it has increased a lot. So we are coming with that part also, and you will be very soon get it into our release, the upcoming releases very soon. And these are few of the policy and the changes which we are foreseeing it, and we are taking help of all the people who are associated to whatever the technological changes would be required in terms of accounting and in terms of taxation. There are lots of things which are going in the background for the GST revamp, like the businesses who have started with the composition but shifted into regular between the financial year, multi GST. I am having multiple branches into multi. How can regulate my single company? So there have been many more aspect which has been raised definitely as a technological barrier. So we are working on that, and you will be getting it very soon. And this we promise that whatever the changes which has been taken care into the budget will definitely be there in Tally. If required, we will make the changes. I'm really, really sure about that. Whatever you've said, Tally will definitely and has always done that, always been game changer and made the businesses, it's so easy to work on Tally. Personal experience है इसलिए बोल रही हूँ, बहुत easy है काम करना, and it's so user friendly, so futuristic. So it's thank you so much for all the experience, Balwant ji. बलवंत जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, MSMEs and क्यों so important for the growth. And when we talk about the $5 trillion economy that the vision country has, the government has, Krishna, you have always been talking about that. And MSMEs are a very important aspect of this, because if MSMEs grow, only then will India, of course, with the corporates, if MSMEs grow, only then will India reach that vision, will be able to, achieve that $5 trillion economy. So what is there for the MSMEs in this budget? Thank you, Parinita. So what is the vision? Like in 2019, हमारे Prime Minister Narendra Modi जी ने एक विजन बनाया था कि इंडिया by 24-25 एक $5 trillion इकोनॉमी बन जाएगी, and it will be the third largest economy in the world. But yes, as the whole world was hit by pandemic, तो कुछ डिले है, बट ऐसा नहीं है कि वो डिले बहुत ज्यादा है. अभी अगर आफ्टर द पैंडेमिक हम अगर 8 to 9% रियल जीडीपी में हम ग्रो करें, so we will be reaching the 5 trillion economy by 25-26 or 26-27. मतलब या तो 1 साल का डिले होगा या तो 2 साल का डिले होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, and we will reach 5 trillion economy by financial year 26. And अगर हम अभी की बात करें तो we have already crossed $3 trillion as per the current record. और 2 ट्रिलियन की जरूरत है, 3 ऑलरेडी मिल गया है और 5 होने में बस 1 साल की देरी है, हम 2 साल भी नहीं पकड़ेंगे. So coming to your question, Parinita, MSME as we know is the largest contributor towards the GDP. GDP बढ़ेगा तो इंडिया का ग्रोथ बढ़ेगा, तो इंडिया अपने वो विजन जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकता है. और जीडीपी का कंट्रीब्यूटर MSME है.
तो एमएसएमई को तो फोकस में रखना ही पड़ेगा, राइट? तो हमारे बजट में एमएसएमई के लिए क्या है? हमारे बजट में एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसे ECLGS कहते हैं, has been expanded by ₹50,000 to 5 lakh crore. उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है और उसका पीरियड भी बढ़ा दिया गया है टिल 2023 मार्च। जो 2022 मार्च था उसको एक साल और बढ़ा दिया गया है कि अगर किसी को भी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की जरूरत पड़े, एनी एमएसएमई, दे कैन अवेल दिस सर्विस, दे कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, and this will give a boom to 60 lakh jobs in next 5 years. एमएसएमई बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री। एंड उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी जो 15% बोला गया था लास्ट ईयर तक रहेगा, वो 2024 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सो फॉर ऑल जो भी नई कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो 24 मार्च 2 साल आने वाले नेक्स्ट 2 साल तक उनको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट। एंड 60,000 crore programs have been introduced will be introduced in next 5 years to rate MSME. MSME का जो पोर्टल है, उद्यम, ई-श्रम, NCS, एसिम पोर्टल, वो सारे इंटरलिंक किए जाएंगे, एक के साथ दूसरा इंटरलिंक किया जाएगा ताकि क्रेडिट फैसिलिटेशन बढ़ सके, स्किलिंग बढ़ सके, रिक्रूटमेंट बढ़ सके एंड फॉर्मलाइज इकोनॉमी एंड एनहांस एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारे एमएसएमईज का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे अगर क्रेडिट चाहिए तो मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, मुझे अगर ट्रेनिंग दिलानी है मेरे बंदों को तो मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। सो दिस इज व्हाट दिस पोर्टल विल डू, इट विल इंटरलिंक ऑल द डिपार्टमेंट्स ताकि एक एज एन एंटरप्रेन्योर आई हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड अगर मुझे ईज ऑफ बिजनेस मिलेगा तो मेरा थॉट प्रोसेस ग्रोथ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा rather than operations. Next is raising and accelerating MSME performance outlay of ₹60 billion over next 5 years, and CGTMSE scheme enhanced to facilitate additional credit of 2 trillion for MSME and expand employment opportunities. So when we talk about MSME, these are some of the areas where government have tried to help the MSMEs to give them a 360-degree help and support, that too with having a portal where they can reach out to any department seamlessly. Fantastic. So ease of doing business और unorganized MSMEs को हमेशा unorganized बोला जाता है, the way they work, the way they have to work, there's no organization. So उस unorganized को systematic organized way में government बनाना चाहता है so that their growth rate can increase, they can really grow faster, and people जो भी policies है plus companies like Tally, they are all helping MSMEs really enhance their growth, structure लाने के लिए, और ease of doing business. This is what the government also believes in. Devesh, whatever we have discussed, okay, what are the specific points that has caught your eye and you really look forward for them that can really be a game changer? So as we discussed, a lot of points have been discussed by Jyoti ji, by Krishna ji, by Balwan ji. For me, there have been a lot of points that have been so transformative and have caught my eye and have made me very excited about the future. Especially like Krishna ji mentioned about the MSMEs, we live in a era of startups, right? And startups का main issue होता है funding. इस फंडिंग इशू को सॉल्व करने के लिए वैसे स्पेसिफिक अगर आप देखो तो पहले पास बजट्स में कभी कोई इनिशिएटिव्स नहीं दिखते थे। इस साल इस इनिशिएटिव्स को एड्रेस करने के लिए
इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने सरचार्ज को कैप किया है एट द रेट ऑफ 15%। अब ये क्या है? बेसिकली क्या होता था कि आज तक इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, जब आप 3 साल से ऊपर अगर उसको होल्ड करते हैं और आप उसको जब प्रॉफिट बुक करते थे, तब आपको उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 15% का सरचार्ज लगता था। लेकिन जो अनलिस्टेड इक्विटीज होती थी, जैसे कि मेरी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरा कोई स्टार्टअप है, अगर वो अनलिस्टेड है तो उसे माना जाता है प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, उसे फंड करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, पीई फंड्स, HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब इससे होता क्या था, जब ये लोग फंड करते थे, और आपने जैसे कि देखा, अगर हम कोई एग्जांपल ले, जैसे ओला का, तो ओला जब फंड हुई थी तब इनिशियल फंड उसको मिला था 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब वो कंपनी बन गई मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, उसकी आज वैल्यूएशन $7 बिलियन है, वो फिर भी अभी भी अनलिस्टेड है। तो आप अगर सोचिए कि लाइक एवरीबडी मस्ट बी सीइंग शार्क टैंक, so there is one shark, Anupam Mittal, in there. He was one of the first few investors in Ola, and Right. he still holds 2% stake. I may be wrong if he is holding it or not, He is. but just imagine he invested 1 crore rupees for 2%, and for a $7 billion valuation, if he is holding 2%, what will be his valuation? And now if he books, earlier this whole gain of long-term capital gain was to be charged as per his tax slab plus a surcharge of up to 37%. Earlier, that rate was that high. In this budget, our finance minister has capped that surcharge to 15%, leveling the playing field for all the sectors, may it be listed or unlisted. So this is one of the biggest booms for our startup industry, for our MSME industries, and this is going to be a game changer for the funding space. Get a lot of investments to the startups and the businesses. Exactly. Just imagine Anupam Mittal is booking his profits in Ola. Where will we park that fund? He will park it in the other startups, like he's doing in Shark Tank, right? Correct. So the next thing is, the most important thing is, government has not just tried to create new avenues of infrastructure investment. They have utilized the existing infrastructure that were being underutilized. So what have they done is, they have mandated the post offices to convert them into core banking facilities, like Jyoti ji has earlier mentioned. There have been Anganwadis where the kids study. They have been told to become, more than 2 lakh Anganwadis are mandated to become Saksham Anganwadi. The funding has been given to them for that. Then the commercial banks, इसमें बजट के दौरान एक दो एनेक्डोट भी आए थे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, हर घर नल से जल, तो एक उनका इनिशिएटिव है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हर घर डिजिटल का नल भी लगाना है. So India is moving towards digital, and for this initiative, commercial banks are told to go digital to facilitate digital payments, and 75 of them have been mandated to do that. So this is a huge step towards going digital. So this is one of the things that have caught my eye. The third, as we discussed, the star of the budget is the PM Gati Shakti plan, and this is going to be huge. What is PM Gati Master Plan? PM Gati Master Plan is a platform on which the government has integrated 16 ministries, including roads, railways, and other ministries that are into infrastructure. Earlier, what used to happen was there, for an example, there was a bridge going above a railway track. So there were dozens of approvals that needed to be taken from different departments. Right. And that project, which can be executed in 6 months to a year, maximum 1.5 years, was delayed for 10 years just for the sake of approvals. बराबर. ये कितना बड़ा पेन है, ये हम सब ने बेयर किया है, हमारी सिटीज में बेयर किया है कि जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, हाफ डन हो जाते हैं, उसके बाद वो लटक जाते हैं और 10-10 साल तक खींचे चले जाते हैं. उसमें हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा यूटिलाइज होता था और वेस्ट होता था.
इस PM Gati master plan से the leadership and the policy makers have tried to integrate all those ministries on a digital platform and have promoted them to take faster measures so that the projects don't get delayed. So this is going to be a game changer. इससे लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, रूरल सेक्टर का आउटपुट बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और जैसे कि हमने बात किया सबसे मेन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। PM गति शक्ति में मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स को प्रमोट किया गया है। उसका मतलब ये होता है कि अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को वो इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपको पता होगा, दिल्ली एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो उसी में एक मेट्रो का एक्सेसिबिलिटी है। उस मेट्रो से आप जा सकते हैं हमारे लोकल रेलवे स्टेशन पे, सफदरगंज एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, अदर लोकल रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। इस तरह का मॉडल से क्या होता है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन से निकल के, एक इंस्टीट्यूशन से निकल के दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इंटरकनेक्टिविटी से ईज ऑफ एक्सेस हमें मिल जाता है। इस चीज को प्रमोट किया गया, और ये चीज सिर्फ फॉर द इजी एक्सेस ऑफ पीपल नहीं है, ये अब चाहते हैं कि इजी एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो। हर एक पूरे देश को इंटरकनेक्ट करके वो चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कैन बी ब्रॉट डाउन सो मच that the local businesses, the MSMEs benefit out of it. So Devesh, they have promoted about goods and services cost. So direct impact होता है FMCG और retail में, correct? Yeah. So ज्योति जी, आप retail और FMCG का ग्रोथ कैसा देख रहे हैं? उसके लिए थोड़ा आपको मैं विवरण समझा दूं कि भारतवर्ष ऑलमोस्ट 50% भारतवर्ष डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप अगर देखेंगे तो 40% FMCG का सेल्स रूरल इंडिया से आता है, जो कि मेनली फूड आइटम से कंट्रीब्यूट होता है। और रिटेल स्टोर्स जो है, 2/3 ऑफ रिटेल स्टोर्स आर इन रूरल इंडिया। बट अब देखा गया है कि थोड़ा कोविड और ये सब जो माहौल बना है उसमें टर्म्स ऑफ ट्रेड थोड़ा शिफ्ट हुए हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं और इनकम जो है फार्मर्स का वो डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ये बजट जो है, आप देखेंगे कि ये बजट एलोकेशन ऑफ एग्री क्रेडिट को एनहांस किया है, प्रायोरिटाइज किया है एग्रीकल्चर और एग्री अलाइड सेक्टर्स को। एंड आप अगर देखेंगे कि बहुत सारे यूनिक चीजें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से लेके डाइवर्सिफाई करने की प्रमोट की जा रही है। डाइवर्सिफाई का मतलब हाई वैल्यू कमोडिटीज लाइक फिशरीज, लाइव स्टॉक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। I mean, all these measures are expected to generate increase in rural consumption. Okay. Now, these heightened spends और the rural infrastructure को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हम लोगों का एग्रीकल्चर आउटपुट को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। ये एग्री वैल्यू चेन में हम लोगों का फार्म इनकम्स बढ़ेगा, और ये हम लोगों का जो है इकोनॉमी को फायदा इसे करता है कि हम लोग का एक वर्चुअस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट साइकिल पे बढ़ावा देता है। और आपने सुना होगा कि मैंने बोला है कि 2025 तक हम लोगों को, ये भी हम लोगों का मोटो है, लक्ष्य है कि हर गांव में एक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस दिया जा रहा है। एक बात आपने भी सुना होगा कि किसान ड्रोन्स का हम लोगों ने इसका परमिशन मिला है। ये परमिशन मिला है फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करना। एक तरफ से केमिकल फ्री और नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट? मिलेट प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है कि उधर हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, हम लोगों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सेसिबिलिटी ऑफ आर रूरल आउटपुट इज देयर अक्रॉस, नॉट जस्ट ओनली इन स्मॉल बट अक्रॉस। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, प्लस लॉजिस्टिक्स के साथ साथ हम लोग उसको पहुंचाया भी जा रहा है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू ऑगर वेल। ये तुरंत नहीं होगा,
आप उसको धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म दिखेगा, लेकिन श्योरली दिखेगा. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप इन प्रमोटिंग रूरल आउटपुट स्पेसिफिकली. Perfect. Everything that we have spoken, everything, Jyoti ji ने जो बोला है, कृष्णा जी ने बोला है, बलवंत जी, देवेश, everybody has pointed out towards this कि this budget is progressive. This budget wants investment and growth on a holistic level. And जो छोटे छोटे जो चीजें होती है जो हमें शॉर्ट टर्म गेन्स देती है, उस पे नहीं हमें फोकस करना चाहिए एज इंडिविजुअल्स, एज एंटरप्रेन्योर्स. और उसी को मैं पॉइंट करते हुए एक जन ने चैट पे लिखा है समथिंग अबाउट क्रिप्टो, एंड द पॉइंट इज, इफ आई कैन से, Government of India is not against crypto, nor are we against crypto, any of the panelists. Nobody is against crypto. The point is, government is taking, measures by thinking. They don't want to take any sudden steps. कुछ ऐसे अचानक से उनको कुछ पॉलिसी नहीं डालना है, because there is no clarity, there is no regulation, like Krishna ji said कि रेगुलेशन नहीं है अभी तक क्रिप्टो का, कोई लीगैलिटी नहीं है. ये सब चीज को मायने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, उसको रेगुलराइज करने के लिए, और जो पेस अचानक से बढ़ गया था उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया है, और उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. इट इज नथिंग अगेंस्ट डिजिटल. लेट्स बी क्लियर, फ्यूचर अगर हम सोचे तो डिजिटल एसेट्स आएगा, यस. हाँ भी ना भी, whatever the future holds for us, that's fine. But government is taking orthodox method, not exactly orthodox, I won't use that word. I want to say measures by thinking, by proper thought process, measures ले रहे हैं. They don't want to जैसे कृष्णा जी ने बोला, बहुत लोग बहुत लॉसेस भी झेल रहे हैं क्रिप्टो में, इनकम भी हो रहा है, लेकिन नथिंग इज रेगुलराइज्ड. ठीक है, और ये जो क्विक मनी है ना, ज्यादा टाइम नहीं चलता है, गैम्बलिंग है एक फिलहाल के लिए, जब तक ये रेगुलराइज नहीं होता. सो नथिंग अगेंस्ट क्रिप्टो. नो, वी आर नॉट हर्ट. आई एम जस्ट क्लियरिंग द एयर दैट नो, ऐसा कुछ नहीं है. So yes, Krishna ji, please. Parinita ji's point, here we are not against crypto, but here we are in support of you for your money. It is your money, and अगर government वो ये step नहीं लेता तो हो सकता है we could have seen some more, your hard-earned money going somewhere which is not yet regularized. जैसे हमने बोला कि by chance if you see a loss or you see the coins getting vanished, then whom do you reach out? तो उन्होंने अगर कोई स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेप लिया है, तो वो आपके हित में लिया है. तो जब तक वो रेगुलराइज नहीं होता है तब तक के लिए ये स्टेप उन्होंने लिया है. बट वी विल बी सीइंग RBI is working towards creation of virtual assets which hopefully should come by FY23. So definitely this is the new India जहाँ पे हम virtual assets भी देखेंगे, but the tax slabs are such so that you can have a balanced portfolio. You should not put all your money in one basket. That is the whole intention of this tax slab for crypto. Perfect. और जितना हमने देखा है अभी तक के डिस्कशन में, जितना भी मेरे डिस्कशंस हुए, एज अ सीए यू ऑलवेज गेट बॉम्बार्डेड विद दिस क्वेश्चन कि अरे क्या है बजट में, क्या है बजट में, आपका ओपिनियन क्या है. और जितना मैंने लोगों का सुना है पॉइंट कि अरे भाई कुछ नहीं है बजट में, बट आज कितनी सारी चीजें हमें पता चली है. बट दिस थिंग ऑलवेज रिमेन्स कि कैसे पढ़े, क्योंकि लाइक वी डिस्कस्ड, लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बजट का क्या है, नोबडी सीज द होल बजट जो सीतारमन जी देती है, वो उतना पूरा कोई नहीं देखता. सब एनालिसिस पढ़ लेते हैं, शॉर्ट हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं जो लोगों ने भेजा है, या तो न्यूज चैनल देख लेते हैं, अभी मोबाइल है, मोबाइल पे देख लेते हैं. सो दैट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ लुकिंग एट द बजट. सो इफ आई कैन आपका ओपिनियन मैं जान सकूं हर एक पैनल का कि बजट पढ़े कैसे, what is the easy way, plus
more informative and more conclusive way of reading the budget कैसे होता है ये, क्योंकि आज भी नहीं, बजट तो हमेशा हर साल आएगा, जो आप पढ़ोगे तब कैसे वो देख सकते हो, प्लीज अगर आप गाइड कर सके. So I would just like to take 1 minute on this Sure, because please. yes, the point is very clear that अगर हम बहुत पास में जाके देखें तो बिजनेस करने के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव रहे हैं और हरदम रहेंगे. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक टाइम पे मनी लेंडर्स होते थे और मनी लेंडर्स किसी को भी जरूरत पड़ने पे पैसा देते थे और उसके ऊपर कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप से चार्ज करते थे जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता था. और अगर आप नहीं दे पाते थे तो दे यूज्ड टू रिकवर इट फ्रॉम टेकिंग योर लैंड और एनीथिंग. तो whether that policy was good or either the government has subsidized or been substantially उस पॉलिसी को लेके आई जिसकी वजह से ये सब चीजें थोड़ा एक रेगुलर हो पाया और हम लोग के लिए चाहे किसी एक डायरेक्शन मिल पाया कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा. वो हम एक आज के टाइम पे हमारे पास एक नॉलेज है, एक वैल्यू है और एक पॉलिसी सिस्टम है. तो जो अभी क्रिप्टो करेंसी के सेंस में जो आने वाला है, जो आएगा, वो अभी उसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. एक वर्चुअल स्टेटमेंट आया है कि यस दिस टू बी टैक्स्ड एंड दिस नीड टू बी मींस टेकन केयर. यस, उसके पैरामीटर में क्या चीजें आएंगी, एटलीस्ट हम उसमें जाके देख पाएंगे कि यस ये है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है. तो वो वाला पैरामीटर अभी हम लोग जज कर पाएंगे. क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉस हो जाता है तो कोई प्राइवेट कंपनी आपके साथ खड़ी नहीं होती है. आप कुछ भी कर लो, आप उसके जो 10 पन्ने के 2000 स्टेटमेंट होते हैं छोटे छोटे लिखे हुए, वो कोई नहीं पढ़ता है. तो जनरली एक ऐसा ही थॉट प्रोसेस है टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में. तो वो उन पार्ट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यस जो चीजें आई हैं उससे चीजें और बेहतर हो पाएंगी. तो वो चीजें हमने यहाँ बताने की कोशिश की है. अपार्ट फ्रॉम दिस, बीइंग एन टैली एज एन टेक्नोलॉजी कंपनी, हम लोग लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी मॉडिफिकेशन, पॉलिसीज, गाइडलाइंस और एमएसएमई या बिजनेसेस को जो भी जरूरत पड़ रही है वो हम अडॉप्ट कर सकें. क्योंकि जनरली क्या होता है, हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब हम अच्छे होंगे. लाइक जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो गाइडेंस दिया जाता है कि आप दूसरों को मास्क पहनाने से पहले खुद को पहनो. तो जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को हेल्प करना है. अगर मैं इक्विप्ड नहीं हूँ टेक्नोलॉजी पे, तो जब पेंडेमिक सिचुएशन आया तो क्या हमारे जो कॉल सेंटर के लोग हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इक्विप्ड थे कि घर बैठ के काम कर सकें? क्या मेरा पार्टनर नेटवर्क जो 22,000 लोगों का पार्टनर नेटवर्क है, क्या वो लोग जो आप लोग के इंडिया के किसी भी कॉर्नर में आपको डिजिटली टच कर सकते हैं, वो लोग तैयार थे? तो यस, दीज आर फ्यू चेंजेस व्हिच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद द someone is asking on education sector and anything. So certain changes which we have taken कि ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर मैं अपने लिए नहीं करता हूं, अगर मैं उस पे जाके खड़ा नहीं उतरता हूं, तो मैं दूसरे के लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा. तो the initiative is somewhat ki if we will practice, we will do it for the benefit of others, so you will definitely get a benefit, or if you will definitely get a mileage out of that. So similarly currently अगर हम देखें, आज भी हम अगर पेंडेमिक सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं, तो वी आर रेडी विद द फ्यूचरिस्टिक डिमांड. लाइक people are asking for virtual usage of Tally on cloud, so we have come up across with the tie-up of most trusted brand, Amazon Web Services, so the people can use Tally on these platforms. Tally on AWS is one of the part. So these are few of the important things which we need to think for our people, our associated businesses. If we will make equipped ourselves on these parameter, if we will get into the knowledge and policies into depth, then definitely it will be supportive where to go, where not to go. So definitely with these words, I would like to add that budget, yes, the budgets will definitely come year on year. We need to participate into it in a positive direction and a positive mindset to get their investment and the earning possibilities in that direction only. So that is all from my end. Wow, superb, Balwantji. Tally has been a great partner in the country's growth, and like you rightly said कि budget आएगा, ये हमारा it's our responsibility कि हम इसको किस तरह से देखते हैं, हम इसको किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं, किस नजरिए
पॉजिटिव नजरिया रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्सपर्ट्स पे रिलाई करना कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो देवेश, वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट? व्हाट इज योर टेक? हाउ डू यू सी बजट every time? So, coming from diverse fields, diverse industries, my main viewpoint has always been one: never miss the budget when it is live. Never ever miss the budget when it's live. The purpose I'm saying, the reason I'm saying this is because there is a reason the budget is this thick when it used to be on the paperback. Now the budget has gone digital. There are numerous pages of fine print that are inside the budget, but the finance minister chooses to speak only on a few sectors and few policies that are highlights of the budget. Everyone who wants to know budget and are keen to study the budget should never miss the live budget. The reason is the policies that are mentioned live are the policies that the government is the most serious about. So picking up the most important points from those live commentaries are the key. Just follow the industry that you are into, the likes that you have. If you're just starting up, just pick up the interest points from your aspect and just listen to it. What are the key elements that the government has introduced for that sector? Writing those down and going then into those fine prints, because going into the fine print of every sector, every policy is next to impossible. So just picking up your interest points and going deep into those blueprints later will definitely help. That's my view on that. Wow. Yes. So being focused always helps. A पूरा budget ना शायद समझ में आए, ना शायद इतना टाइम मिले आपको, और ना आपके काम आए, हो सकता है. सो फोकस ऑन फ्यू एरियाज जो आपके इंडस्ट्री में या आपके काम में, अगर आप स्टूडेंट हो, आगे आपका क्या फोकस है लाइफ में, उसमें आपको हेल्प करे. सो उस पे फोकस कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट व्यू पॉइंट देवेश. कृष्णा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे देवेश जी ने ऑलरेडी, आई वुड ऐड टू देवेश जी एंड बलवंत जी पॉइंट, लाइक हाँ, आप पूरा बजट आपको नहीं समझ में आएगा, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच वी नीड टू डू ऑल्सो. हमें क्या मतलब, आई जस्ट ब्रोक इट डाउन टू 3 स्टेप्स. मेरे लिए जब बजट आता है, हाउ आई टेक इट, आई ब्रेक इट डाउन इनटू 3 स्टेप्स. माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट किस एरिया में है. लेट्स से अगर मैं एक एमएसएमई हूँ, या मैं एक एम्प्लॉय हूँ, या मैं प्रोफेशनल हूँ, या मैं डॉक्टर हूँ, सीए हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. फर्स्ट आई लुक ऑन टू दैट. तब उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ ऑन इंडस्ट्री. अगर एमएसएमई है तो एमएसएमई के लिए क्या है बजट में. लाइक इफ आई टॉक अबाउट एमएसएमई, ईज ऑफ बिजनेस एंड लिविंग को फोकस किया गया है. मतलब जो पहले 75,000 कंप्लायंसेस थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, और अब हमारे पास बस 1486 यूनियन लॉज हैं टू मेक बिजनेस इजियर. उसके ऊपर अगर कोई वॉलंटरी एग्जिट करना चाहता है, कोई भी कॉर्पोरेट, तो पहले उनको 2 साल लगते थे फॉर द एग्जिट प्रोसेस. किसी को अपना बिजनेस बंद करना है या कुछ है, 2 साल लगते थे. अब उसको कट करके 6 महीना कर दिया गया है कि अगर किसी को भी लग रहा है उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और उसको एग्जिट करना है, तो व्हाट इज द एग्जिट प्रोसेस, उसको शॉर्टन करके विद इन 6 मंथ्स दैट प्रोसेस विल बी डन. सो जब आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करोगे एंड फिर सेकेंड स्टेप में उस पे फोकस करके देखोगे कि बजट में उसके ऊपर क्या है, एंड देन थर्ड स्टेप इज, अब जो बजट में लिखा गया है दैट दिस विल बी देयर इन एमएसएमई फॉर एमएसएमई, तो 2 केसेस आते हैं थर्ड पॉइंट में. देन आई सी कि अब जो बजट में एमएसएमई के लिए लिखा है कि कंप्लायंस कम हो गया या तो एग्जिट प्रोसेस बढ़ गया. मैं इस दोनों पॉइंट को बस टच कर रही हूं बिकॉज इट विल, पॉइंट्स आर वेरी ह्यूज, वी कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग. सो अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है,
तो कंप्लायंस को मैं कैसे हाउ कैन आई टेक द हेल्प ऑफ कंप्लायंस टू मेक माय बिजनेस ग्रो मोर फास्टर? या तो अगर मेरे पास 3 बिजनेस हैं और उसमें से एक अच्छा नहीं चल रहा है, मैं how can I expedite the process of exiting that and I put that money in my other business, or I put my focus in other business? This is how I take the budget. Wow, that's so, you simplified it so well कि हाँ, जैसे देवेश ने भी बोला कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप कैसे बेनिफिट कर सको, कौन से एरियाज को टच कर सको, उसको देखिए, उसको समझिए, ठीक है। न्यूज चैनल्स वगैरह, आपका रिटन मटेरियल, everything will be there, but like Devesh said, like Krishna said, don't miss the live session. It really highlights कंट्री कहाँ जा रही है, कंट्री कहाँ जाना चाहती है, गवर्नमेंट अपने कंट्री को कहाँ लेके जाना चाहता है. That will set the base of your growth as well, because indirectly everything is connected. सब कुछ, सब चीज से फायदा होता है, जो भी होता है, आप everything is connected, it's a web. तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि अरे इससे मुझे कुछ असर नहीं करेगा. On a holistic level आपको बजट समझना पड़ेगा. डिटेल में जाने के लिए अपने इंटरेस्ट पॉइंट्स पे जाइए, अपने वर्क एरिया में जाइए. थैंक यू कृष्णा जी. ज्योति जी, आप बजट इतने सालों से देखते आ रहे हैं. how do you see budgets? I see it very differently. What I can say is there are certain controllables, there are certain uncontrollables. Uncontrollables है जैसे कोविड आ गया, और जैसे हम लोगों का भी देश का लैंडस्केप और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. आपके पास पावर है इन द बजट टू हैव लॉन्ग लास्टिंग रिपरकशंस. तो मैं देखता हूं कि सेंट्रल थीम क्या है बजट का. फॉरवर्ड लुकिंग है तो फिर किस मुद्दे पे, क्या लीवर्स को वो फोकस कर रहा है जो कि आगे जाके इंपैक्टफुल हो. जैसे इस बजट का हम देखेंगे कि बड़ा क्लियर थीम था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. सेकेंड, फ्यूचर इज डिजिटल. ये बड़ा क्लियर थीम आ रहा है. एंड थर्ड, ये जितना भी हम लोगों का देखा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले, गति शक्ति प्रोजेक्ट, रूरल एम्पावरमेंट, ये सब मल्टीप्लायर इफेक्ट है. ये तो 1 साल का या 2 साल का कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है. ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बजट्स में हम लोगों को बताया गया है कि 100 years 75 से जो 100 years का जो हम लोग का जो मार्ग है, जो हम लोग का रास्ता है, वो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे आज के दिन में हम लोग बता सकते हैं कि इंडिया कैन बी नोन एज ए लैंड ऑफ टैलेंट, but tomorrow we are very clear that we want to be known as a land of innovation, and that is something that the foundation has been laid, the theme has been laid excellently. I think infrastructure boost करके private investment का जो participation है, domestic manufacturing और boosting demand, creating jobs, तो पूरा theme दिख रहा है. लेकिन 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आगे जाके आज के दिन में मैं बताया था कि 70% इंडिया और रूरल इंडिया में बसता है. कल जाके शायद 70% से घट के जब हम लोग 100 बजट बोल रहे होंगे, डोंट बी सरप्राइज्ड दैट इफ दैट फिगर बिकम्स 50%. Now, if 50% of India is going to be a resident in urban India, are we having or are we creating the infrastructure for that? Try to understand today, even MSMEs or any manufacturing industry or any industry will remain or start functioning or set up manufacturing where it is conducive. आज के दिन में conducive कहाँ पे है? जहां पे लेबर, जहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे बाकी जो भी इकोसिस्टम है वो तैयार है. टियर 3, टियर 2, टियर 1 टाउन पे ये कल जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की आउटले कर रहा है, जो कि कल जाके शायद हम लोगों का वो हब बने. लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रांसपोर्ट है, जो मैन पावर का जो लॉजिस्टिक्स है, ये सब हम लोग तैयार और उसका फाउंडेशन दे रहे हैं. सो 2 चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए. एक है एग्जीक्यूशन, जो कि बहुत ही जरूरी है.
ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है फॉर एवरी माइलस्टोन टू बी लेड आउट, एंड द प्रूफ कि ये सक्सेस हो रहा है विल ओनली कम व्हेन यू सी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स जो कि आ रहा है इस पे। द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इज द प्रूफ ऑफ द पुडिंग, एंड जिसके लिए हम लोगों को वेरी क्लियर माइलस्टोन लेड एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज आई सेड फ्यूचर इज डिजिटल एंड वी विल बी नोन फॉर अ लैंड ऑफ इनोवेशन। वाओ, थैंक यू सो मच ज्योति जी। आपके हर एक शब्द बताते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना डीप है, कितना एनालिटिकल है। लाइक किसी ने बोला भी है चैट में कि सच अ एनालिटिकल द वे यू हैव सेड। सो ज्योति जी, थैंक यू सो मच। देवेश जी, कृष्णा जी, बलवन जी, थैंक यू सो मच फॉर all your opinions. You all shared such great your opinion, your perspective of the budget, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरीके से हर आपने एक अपने फील्ड चूज करके उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बजट को एक तरह से मत देखिए, घोड़े की नाल मत लगाइए, आपको खुला पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, आपको एक ब्रॉडर व्यू में देखना पड़ेगा बजट को। जैसे गवर्नमेंट देखना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है आप भी देखे, ठीक है। सो समराइजिंग, आप बजट कैसे देखोगे, जैसे ज्योति जी ने बोला, एक दो लीवर चूज कीजिए कि गवर्नमेंट ने किस बेस पे बजट बनाया है, राइट। किस दो तीन मुद्दे, जो मेन मुद्दे गवर्नमेंट छूना चाहती है वो कौन से है, उसको पढ़िए। उसके बाद अपने इंटरेस्ट को चूज कीजिए, कौन से इंटरेस्ट में आप डीप डाइव करना चाहते हैं। जैसे कृष्णा जी और देवेश ने करेक्टली बोला, अपने इंटरेस्ट को चूज कीजिए, अपने काम को चूज कीजिए, काम से रिलेटेड आपको क्या क्या यूज आएगा वो आप देखिए। उसके बाद आप बजट पढ़िए, एक्सपर्ट्स की सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसे सेमिनार्स अटेंड कीजिए, न्यूज चैनल्स देखिए, बट अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन ब्रॉड रखिए, लोगों की बात में मत जाइए, अपना ओपिनियन बनाना सीखिए, अपना रिसर्च करना सीखिए, एंड लाइफ बजट मत मिस कीजिए। So thank you so much everybody, thank you so much all the participants. We are way out of time and I think ये discussion endless है, ठीक है। इतना सब कुछ है बजट में डिस्कस करने के लिए, बट हाँ, हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब बिजी है, और उस बिजी स्केड्यूल में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ यहाँ पे आए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चंस। लाइक आई हैव ऑलवेज सेड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत ही हिम्मत लगती है अपना ओपिनियन रखने के लिए, अपना क्वेश्चन भी पूछने के लिए। सब लोग अपना क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाते हैं। सो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा, जो हमें क्वेश्चंस भेजे थे पहले भी, उनके लिए भी धन्यवाद। हम अपने क्वेश्चंस फॉर्म कर पाए आपके क्वेश्चंस पे बेस्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Thank you MSME Business India Forum again and Tally for hosting this, bringing such great experts on this platform. India के अलग-अलग जगह से हम मिल पाए। I got to know these professionals, such amazing experience. मुझे इतनी चीजें सीखने को मिली। So thank you so much for all of it. Also, budget बहुत important है। Please budget हमेशा पढ़िएगा। On an ending note, I would like to repeat what Narendra Modi ji had said yesterday, because मुझे इतना impact किया है, it is just in my mind. अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू क्यों पड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, हर पल है अनमोल, अरे भारत उठ, आँख खोल, बजट देख, उससे सीख, उससे बढ़। Thank you so much everybody. Thank you so much. Thank you so much, Pranita ji. Thank you so much for comparing and being the Sutradhar. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. Thank you for being an amazing host, and thank you for your insights and the way you drove it. It was really keeping the session engaging. And really thank you to all the panelists for joining hands, and thank you to all the participants for being such active participants and sharing your questions. Yes, thank you so much. Thank you so much. Pleasure everybody. Thank you. Thank you Krishna ji. Thank you Jyoti ji. Thank you Parinita ji. Thank you Devesh ji. Bye bye. Signing off. Bye. A great day. Thank you. Thank you. Bye bye.
Balwanji, so everybody, we all experts are there on LinkedIn. You can connect with us there. If any platform, I would request the experts, if you're comfortable to share any other mode of communication to you, please आप chat box में लिख दीजिए. People will be, I think they will be happy to connect with you. We are also there on LinkedIn. Balwanji, if you could help people out की recording कहाँ मिलेगी उनको, if you can help that out. Yeah, the recording Tally used to just put it on their own that YouTube channel, Facebook, Super. and whatever the digital channel and platforms which we are using, the video will be available in that. सुपर. सो यूट्यूब पे जाइए, टैली का चैनल देखिए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. So thank you so much. I'm putting everybody's full name. Thank you so much, Krishna, for the LinkedIn the link. That really eases out. But also I'm putting everybody's full name, so you can search them on LinkedIn. Super. So everybody, okay, so everybody is putting their handles, so I won't put the name. I'm putting my name because I don't have the handle handy right now. So you can search for my name. Devesh, I've put your name. Any other mode of contact, please. Pramod ji, you had raised your hand, I think. Do you want to share something? You can write it in the chat box. So thank you so much, everybody. Signing off. Have a great, great day. Hope you grow by leaps and bounds.